एंड वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज दे इस वीडियो लैक्चर में असीं डिस्कस करांगे PPSC GS प्रीलिम्स 2012। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एटम। ऑप्शन ए इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन बी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन सी कैन रिटेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन डी आर ऑफ द अबव। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਬਵ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬॉडीज। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वैक्शन, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी रेडिएशन। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਬਜ਼ॉर्प्शन। ਐਬਜ਼ॉर्प्शन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੀਟ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ of earth and water. Mark the correct answer. Option A, sea breeze move from sea to land during night. Sea breeze moves from sea to land during night. Land breeze move from sea to land during night. Option D है जी, none of the above. Basically ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ let this is sea and this is the land. Land and sea has बहुत different properties. ਜੋ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਸੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਟਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀਟ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਏਅਰ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਲੈਂਡ ਟੂ ਸੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨਾਈਟ temperature of the land is less as compared to the temperature of the sea because ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਵਾਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨਾਈਟ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਏਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਨਾਈਟ ਸੀ ਬ੍ਰੀਜ਼ਸ ਮੂਵਸ ਫਰੋਮ ਸੀ ਟੂ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਵੂਲਨ ਕਲੌਥਸ ਕੀਪ ਅਸ ਵਾਰਮ ਡੂਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹਾ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਵੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ऑप्शन बी है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ फाइबर रिटेन हीट। ऑप्शन सी है, वूल कीप्स एयर ट्रैप्ड इन फाइबर। ऑप्शन डी है, वूल जस्ट एस्केप ऑफ बॉडी हीट टू एनवायरनमेंट। इसका करेक्ट आंसर की है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ फाइबर रिटेन हीट। मीनस ये स्टेटमेंट की है जी, गलत है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, एट वट टैंपरेचर डू द सेल्सियस एंड फारनहाइट स्केल विल रीड सेम। कि टैंपरेचर पर की है जी, सेल्सियस एंड फारनहाइट स्केल ने जो वो सेम डिग्री ऑफ हॉटनैस जो टैंपरेचर की शो करते हैं। ये क्या है जी, 40 डिग्री। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर हेल्प्स अस इन कुकिंग फूड फास्टर बिकॉज। ऑप्शन ए, इट राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। बी, it can conserve heat being made of special metal. C, it does not allow atmosphere to cool down the food. D, provide better medium of conduction of heat and food.
ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇਟ ਰਾਈਜ਼es ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਈਸ ਆਰ ਏ ਇਕੁਅਲ, ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ which is heavier than air flies in air due to A buoyancy, B forward motion of the aircraft, C difference in pressure on the upper and lower side of the wings, D jet propulsion। ऑप्शन ए की है जी buoyancy। buoyancy की होंगी है जी कैपेबिलिटी टू float on the water। ए की है जी बिल्कुल गलत है। नैक्सट ऑप्शन की है जी forward motion of the aircraft। एयरक्राफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਗਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਜੋ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੋਅਰ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਪਰ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ मूवमेंट दिंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है कि जी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द ए इट्स साइज एंड वेलोसिटी ऑफ एयर अराउंड इट, बी डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, सी मैथड ऑफ हीट ट्रांसफर, डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसका करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन बी डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वैन अ सबस्टांस पासिस फ्रॉम सॉलिड पार्ट टू वेपर सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए वेपराइजेशन, बी म्यूटेशन, सी कंडेंसेशन, डी सबलिमेशन। की कहते हैं ये जो कोई भी सबस्टांस है वो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट तो डायरैक्ट वेपर स्टेट में आ जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो उस फिनोमेना की कहा जाता है, उसनों कहा जाता है जी सबलिमेशन। जो वैपराइजेशन प्रोसैस है वो की है जी उसके की है पहला सॉलिड पार्ट तो सॉलिड स्टेट तो की है जी लिक्विड स्टेट में आती है सबस्टांस एंड दैन की है जी वेपर स्टेट में आता है। एंड जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन प्रोसैस उसनों कहा जाता है किसी भी सॉलिड स्टेट तो लिक्विड या फिर लिक्विड तो वेपर दे विच कन्वर्ट होना, या फिर सिर्फ यह की है जी स्टेट चेंज करने की है जी म्यूटेशन किया जाता है। एंड कंडेंसेशन की होंगे जी जो एक कोल्ड सरफेस से ज़्यादा ह्यूमिडिटी इन द एयर होने के कारण कोल्ड सरफेस के उपर वाटर के ड्रॉपलैट्स जम जाते हैं, तो उसनों की कहा जाता जी कंडेंसेशन। लाइक इन द समर जो तुसी एक ठंडे पानी का गिलास रख दें तो उसके अराउंड की है जी ड्रॉपलैट्स लग जाते हैं, इस प्रोसैस में की कहा जाता जी कंडेंसेशन। नैक्सट क्वेश्चन है जी करैक्ट विजन ऑफ आई ह्यूमन आई कैन बी अचीव्ड बाय प्रेसक्रिप्शन ग्लासेस विच यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, क्रोमैटिक एब्रेशन, नन ऑफ द अबव। सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि रिफ्लैक्शन की होंगी है। रिफ्लैक्शन होंगी है जी किसी चमकदार मैटल के उपर जो रेज सनलाइट या फिर कह दिए लाइट रेज आके फॉल करती हैं तो वो की है जी वापस चले जाती हैं, इसनों कहते हैं जी रिफ्लैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन की है जी एक गिलास होंगे जिसके की है जी रे लाइट रेज पास हो जाती हैं बट की है जी वो बेंट कर जाती ने, तो ये की है जी प्रिंसीपल ह्यूमन आई का जो विजन है उसको करैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब आंसर की है जी ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। नैक्सट है जी यूजली द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ आ मोटर व्हीकल आर कनकेव मिरर, कॉन्वैक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव कॉन्वैक्स मिरर। किहड़े मिरर यूज़ किए जाते हैं जी व्हीकल दे विच, वो होंदे ने जी कन्वैक्स मिरर, ऑप्शन बी। नैक्सट है जी
इलैक्ट्रिक करंट पासिज इन आ कंडक्टर ड्यू टू ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पीयर कोई टर्म नहीं हैगी जी, एम्पीयर एक यूनिट ने करंट दे, ठीक है जी। एंड वाट इज़ की है यूनिट ऑफ वाट। सो करेक्ट ऑप्शन की है जी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है जी वैक्सीन आर यूज टू वर्ल्ड इम्यूनिटी टू डिसीज वाई ए simulating disease in the body to produce antibodies, B injecting antibodies in blood stream, C enhancing immunity by a large dose of vitamins, D enhancing immunity by a large dose of enzymes। is the correct answer की है जी ऑप्शन ए simulating disease in the body to produce antibodies। नेक्स्ट है जी विच फैक्ट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ इनकरैक्ट। इतने तुसीं खास ध्यान रखना, इन्होंने इनकरैक्ट किया करैक्ट नहीं किया। ऑप्शन ए है जी स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर टाइम, बी स्पीड मस्ट बी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, सी वेलोसिटी इज़ द स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, डी बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड मस्ट बी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए है नहीं, तो ये की है जी फाल्स स्टेटमेंट है। मीनस ये की है जी अपने क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बायोगैस प्लांट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक फ्यूल प्रोड्यूसेस डैश गैसेस विच बर्नस विदाउट गिविंग एनी स्मोक। किहड़ी गैस बायोगैस प्लांट दे विच प्रोड्यूस होंदी है मीथेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन आ सिंपल है जी क्लडी डे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स आ फूड चेन। इन्होंने फूड चेन केड़ी है जी ऑप्शन ए ग्रास बीट मैंगो। ये कोई फूड चेन नहीं बनती जी, ग्रास नूं बीट नहीं खाती एंड बीट नूं मैंगो नहीं खाते। ऑप्शन बी है जी ग्रास गॉट ह्यूमन। ये क्या है जी फूड चेन है, ग्रास नूं गॉट खाती है एंड गॉट नूं की है जी ह्यूमन खा जाते हैं, तो ये की बनी जी अपनी एक फूड चेन बन गई। तो इसका आंसर की है जी करैक्ट ऑप्शन बी। नैक्सट है जी एट द टाइम ऑफ अ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ऑप्शन ए रिड्यूस सबसटेंशली, बी डज नॉट चेंज, सी इनक्रीज हैवीली, डी वेरीज कंटिन्यूसली। जो एक सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो उस की है जी करंट बहुत ही ज़्यादा सडनली इनक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर की है जी इनक्रीज हैवली। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ऑप्शन ए द फील्ड कंसिस्ट ऑफ आ straight line perpendicular to the wire, B the field consists of straight line parallel to the wire, option C the field consists of radial lines originating from the wire, option D the field consists of concentric circle centered on the wire। इसका आंसर की है जी ऑप्शन डी the field consists of concentric circle centered on the wire। ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ, ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी एक्सक्रेशन, डी लोकोमोशन। इसका आंसर क्या है जी एक्सक्रेशन। नेक्स्ट है जी जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जाइलम की है जी रिस्पॉन्सिबल होंगे जी फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर, तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी विंडोज़ एक्सप्लोरर, सी गूगल क्रोम, डी सफारी। इंटरनेट एक्सप्लोरर की है जी एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है एंड सफारी भी वेब ब्राउज़र है। जो बी है वो की है जी
ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਵੋਰਡ ਐਕਰੋਬੈਟ ਫਾਈਲ ਹੈਵ ਸੁਫਿਕਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡॉक, ਬੀ XLS, सी PDF, डी MP3। इसका आंसर क्या है जी PDF। नेक्स्ट है जी CAG हैज़ अपॉइंटेड आउट सर्टेन इरेगुलरिटीज इन अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम टू सेल फोन ऑपरेशंस। ऑप्शन ए इट इज़ territory over which an operator can provide service without roaming charges। option B it is the frequency channel which the operator can use for telecommunication। option C it is the total number of cell phone which an operator can use certain frequency। option D none of the above। CAG है क्या जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इज द करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन बी इट इज़ द फ्रिक्वेंसी चैनल विच द ऑपरेटर कैन यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट अबाउट द रेशो ऑफ फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन ए हायर द फ्रिक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ, बी हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द वेवलेंथ, सी हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द एम्पलीट्यूड, डी हायर द फ्रिक्वेंसी लोअर द एम्पलीट्यूड। इसका आंसर की है जी ऑप्शन नंबर ए हायर द फ्रिक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ की है जी एक दूसरे के रिवर्स होंगे ने या अपोजिट होंगे ने। जे फ्रिक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ की है जी लो होगी, जे फ्रिक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ की है जी हाई होगी। नेक्स्ट है जी भारतीय साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर दिलीप कौर टिवाना वाज अवार्डेड हिज ऑनर दिस ऑनर फॉर विच ऑफ हर राइटिंग। दिलीप कौर टिवाना ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਏ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਣਾ, ਬੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਚੰਨਣ ਦੀ, ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡੀ ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ। ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। Which of the writers and his work have been paired wrongly। ਇਹ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੀਲੂ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੀਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹਾਸਮ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ किहदे द्वारा लिखे गया जी सी फजल शाह सैयद द्वारा। ठीक है जी, तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन डी ए की है जी इनकरैक्ट पेयर है। नेक्स्ट है जी फतेह बुर्ज इज़ 100 मीटर टाल, सेकंड इज़ टालर दैन कुतुब मीनार, थर्ड इज़ अ मोनूमेंट टू कमेमोरेट बाबा बंदा सिंह बहादुर विन ओवर सरहिंद, फोर्थ की है जी इज़ लोकेटेड ਐਟ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਮੀਟਰ ਟਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਮੀਟਰ ਟਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਜ਼ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ, ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰੇ जो ऑप्शनस ने वो करैक्ट ने। तो इसका आंसर की होगा जी डी ऑल ऑफ द अबव। नैक्सट क्वेश्चन है जी बट मूवड शहीद भगत सिंह इन हिज अर्ली लाइफ टू रजिस्ट द इंग्लिश रूलर्स। भगत सिंह नूं अर्ली लाइफ दे विच किस इवेंट ने मूव किया। ऑप्शन ए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिमन कमीशन, सी जलियांवाला बाग मैसेकर, डी नौजवान भारत सभा। इसका करैक्ट आंसर की है जी जलियांवाला बाग मैसेकर। नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल डांस। इन्होंने विचों की है जी सम्मी भी ट्रेडिशनल डांस है पंजाब का, गिद्धा भंगड़ा ये भी ट्रेडिशनल डांस है। बी ऑप्शन की है जी ट्रेडिशनल डांस नहीं है, तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन बी बेन। नैक्सट है जी
ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਟਸ ਏਮ ਐਟ ਪ੍ਰੋਟੈक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सिक्स थ्रू एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो फर्स्ट ऑप्शन है फाउंडेड इन 1907 एट लाहौर, एक चीज़ रॉन्ग है क्योंकि ये की है जी तुहानूं मैं दस्सिआ 1860 विच फाउंड हो चुकी सी। नैक्सट है जी विच फैक्ट अबाउट पंजाब इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट है जी इट्स एरिया इज़ अबाउट 50,000 स्क्वेयर किलोमीटर, राइट है। बी है जी पंजाब हैज़ मोर दैन 12,000 विलेजेस, ये भी करैक्ट स्टेटमेंट है जी। सी है जी देर आर मोर पंचायतें दैन द नंबर ऑफ विलेजेस, ये भी करैक्ट है जी। पंजाब दे विच ज़्यादा पंचायत ने एज़ कंपेयर टू द विलेजेस। ऑप्शन डी तां की है जी ये रॉन्ग है। पॉपूलेशन डेंसिटी इन पंजाब इज़ अबाउट 600 पीपल पर स्क्वेयर किलोमीटर, तो इसका आंसर की होगा जी ऑप्शन डी। नैक्सट है जी कंडी एरिया एन इंपोर्टेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ पंजाब हैज़ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। पहली क्या जी सब माउंटेन अंडुलेटिंग टेरेन, सेकेंड लैक ऑफ पेरेनल सोर्स वाटर सोर्स, थर्ड हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, फोर्थ एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड। इन्हां विच किहड़े ऑप्शन सही ने जी, सब माउंटेन एरिया है सही है, लैक ऑफ पेरेनल वाटर है ये भी सही है जी, हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ये भी सही है, एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं हैगी, उपजाऊ भूमि ये नहीं हैगी। ਤਾਂ कि जी फोर्थ ऑप्शन इस दे विच रॉन्ग है। इसका सही आंसर की होगा जी ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। ये मेनली कंडी एरिया पंजाब का किहड़ा है जी, नॉर्थन वाला एरिया है ये वाला, जिस विच क्या है जी शिवालिक हिल्स पाई जांदियां ने। नैक्सट है जी नामधारी मूवमेंट आल्सो कॉल्ड एज कुका मूवमेंट वाज स्टार्टड बाय होम एंड वैन। ये की है जी नामधारी मूवमेंट भाई राम सिंह के द्वारा फाउंड की गई सी 1815 विच, बट इत्थे की है जी 1815 वाला कोई आंसर नहीं हैगा, तां की असीं नीयरेस्ट वाला देखांगे। पहला की है जी दयाल सिंह वालियां नूं रॉन्ग कर दो, ए एंड सी रह गई किहड़ियां ऑप्शन है जी बी एंड डी। इस दे विच जो नीयरेस्ट सन वाली है, नीयरेस्ट वाली किहड़ी है जी ऑप्शन नंबर बी 1857, तो इसका करैक्ट आंसर की है जी बी भाई राम सिंह ऑन 1 अप्रैल 1857। नैक्सट क्वेश्चन है जी अरेंज द फॉलोइंग इंपोर्टेंट इवेंट इन हिस्टरी ऑफ पंजाब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है जी जलियांवाला बाग इंसिडेंट, सैकेंड कामाघाटा मारू इंसिडेंट, थर्ड द गदर मूवमेंट, फोर्थ बैटल ऑफ सारागढ़ी। इन्होंने की है जी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना, मीनस जो सब तो पहला इवेंट हुई सी हिस्टरी में, फिर उस तो बाद इस तरह लगाना है। सब तो पहला इन्हां विच किहड़ी हुई सी जी बैटल ऑफ सारागढ़ी। ये किन्ने विच हुई सी बैटल ऑफ सारागढ़ी 1800 सम ईयर विच हुई सी, 1867 दे विच हुई सी। उस तो बाद किहड़ी हुई सी जी द गदर मूवमेंट इन 1913। उस तो बाद किहड़ी हुई सी जी कामाघाटा मारू इन 1914 एंड लेटेस्ट किहड़ी है जी जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 दे विच। तां की है जी इसनूं जस्ट असीं उल्ट कर देना सारे इवेंट्स नूं, तां इसका करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन डी सब तो पहला 4, 3, 2, 1। नैक्सट मूव करते हैं जी एज पर 2011 सेंसस द मोस्ट एंड द लीस्ट डेंसली पॉपूलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग की है जी सब तो ज़्यादा संघनता वाला अते घट संघनता वाला एरिया किहड़ा है जी, सब तो ज़्यादा डेंस किहड़ा है जी लुधियाना एंड लीस्ट किहड़ा है जी मुक्तसर। तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन बी लुधियाना एंड मुक्तसर। नैक्सट क्वेश्चन है जी इन कंपैरिजन टू 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब एज पर 2011 सेंसस हैज़ इंक्रीज टू। ये क्या है जी
2001 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਲਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? 2.44 ਐਂਡ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ ਪੰਜਾਬ हैज़ अचीव्ड लीस्ट ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर, टर्सरी सैक्टर, नो ग्रोथ। सब तो घट ग्रोथ किहड़े सैक्टर विच असीं देखी है जी इन लास्ट डैकेड? ऑप्शन ए प्राइमरी सैक्टर। नैक्सट है जी, स्लगिश ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सैक्टर इन पंजाब इज़ ड्यू टू ऑप्शन ए पर एकड़ yield of crop has peaked, B decrease in average land holding of farmer, C increased dependence on groundwater, D all of the above। इसका आंसर क्या है जी? all of the above। पर एकड़ यील्ड की है जी पीक ते जा चुकी है एंड जो लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर है की है जी उसकी एवरेज डिक्रीज होंदी जा रही है। लोगों को जो लैंड है वो घटती जा रही है ड्यू टू की है जी जिद्दां किस पहलां किस दे पिता कोल की सी जी 20 किले सी एंड अगे उसके की है जी 4 संद ने उन्होंने कोल की है जी 5-5 किले रह गई। इस नाल भी की है जी बहुत घाटा पै रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन की है जी इनक्रीज डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर ते की डिपेंडेंस वधदी जा रही है। तो ये की ने जी सारे कारण ने स्लगिश ग्रोथ दे। स्लगिश दे मीनिंग की हुंदा जी बहुत ही स्लो ग्रोथ होना, उसनूं आपां कहने हैं जी स्लगिश ग्रोथ। नैक्सट है जी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी वाज फॉर्मड बाय द पंजाब गौरमेंट टू ऑप्शन ए इंप्लीमेंट लैंड रिकॉर्ड एक्ट, बी टू स्टडी फ्लॉ इन लैंड रिकॉर्ड, सी प्रोवाइड एफिशिएंट लैंड रिकॉर्ड रिलेटेड सर्विस, डी टू सैटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड। ये जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी फॉर्म की पंजाब गौरमेंट ने, ये बेसिकली की है जी लोगों को सर्विस देने के लिए बनाई गई है टू प्रोवाइड एफिशिएंट लैंड रिकॉर्ड रिलेटेड सर्विस। नैक्सट क्वेश्चन है जी, बलारी रक्षक योजना लॉन्च्ड बाय पंजाब गौरमेंट इज़ एम्ड एट करेक्टिंग चाइल्ड सेक्स रेशो, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टैलिटी, सी एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर की है जी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जी, मिलीबागी इज़ अ पेस्ट विच अफेक्ट द यील्ड ऑफ डैश क्रॉप इन पंजाब। मिलीबाग की है जी कॉटन नूं अफेक्ट करता है, मीनस जां फिर कह दी नरमे नूं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, इन पंजाब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज कैन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्ट्री पंजाब विच कितनियां हो सकदियां ने? इसका आंसर है जी 18। नाउ प्रेजेंटली इन द कैप्टन अमरिंदर सिंह गौरमेंट देर आर ओनली 17 मिनिस्ट्रीज, बट मैक्सिमम कितनियां हो सकदियां ने? वो है जी 18। नेक्स्ट है जी, हु इज़ जिन योंग किम। ऑप्शन ए ही इज़ फेमस टेनिस प्लेयर, बी ही इज़ प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सी ही इज़ द न्यू किंग ऑफ मलेशिया, डी नन ऑफ द अबव। इसकी ऑप्शन पहले टिक की हुई है जी। जिन योंग किम कौन सी जी? ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है जी, द UN जनरल असैम्बली इलैक्टेड इन अक्टूबर 2012 5 न्यू नॉन परमानेंट members to the Security Council. They include first North Korea and Luxembourg, second South Korea and Rwanda, third Australia and Argentina, fourth India and Brazil। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨॉन परमानेंट ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਮੀਨਸ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨॉन परमानेंट ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਰਪੰਚਜ਼ ਬਾय ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਐਂਡ देयर मास रेजिग्नेशन इन द न्यूज़ रिसेंटली वर इन विच स्टेट।
छत्तीसगढ़, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार। ये की है जी करंट अफेयर है 2012 का। ये अपने लिए ना इंपोर्टेंट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू उस टाइम की सी है जी बहुत इंपोर्टेंट सीगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਸਰਪੰਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ UN Department of Economics and Social Affairs data showed that in 2000 which of the following countries had female infant mortality rate higher than the male infant mortality। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਇਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੀਨਸ 2012 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ 2012 ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸ। ਜਿਹੜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੀ? ਫਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ 4th ਸਮਿਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 11th ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਇਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਨ ਨਵੰਬਰ 2019। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੋ 12th ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ 13th ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਜਨੇਵਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ। IMF ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਜੀ 189 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PPSC GS ਪ੍ਰੀਲਿਮ 2012 ਦੇ ਫਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਨੇ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।